explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Let us begin with the chapter number 1 of grammar, and the name of the chapter is sentence. All know about sentences, that they are the group of words that are arranged in a order so that they can make a complete sentence, right? So let us read the chapter and gather some more information about the sentence. So a sentence is a com- group or combination of words making complete sense. तो सेंटेंस जो है वो एक ऐसा ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है. It always begins with a capital letter and ends with a full stop. ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और एक फुल स्टॉप पर खत्म किया जाता है. A question mark or an exclamation mark depending on what kind of sentence it is. कि सेंटेंस के एंड में हम हमेशा एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि सेंटेंस किस काइंड का है, राइट. लेट्स रीड द एग्जांपल्स. So the girl is very beautiful. It the girl very beautiful. How beautiful the girl is, right? अब इसी के बाद नेक्स्ट आता है the kinds of sentence. So what are the kinds of sentences? Let's read them. So they are assertive, interrogative, imperative, and exclamative. Right? Assertive, imperative, interrogative और exclamative. अब ये जो assertive sentences हैं, they are also further divided into two more categories. They are affirmative, positive, declarative, or negative. Right? So now, first of all, we have the assertive sentence. So up, let's see about the assertive sentences. A simple sentence that expresses a positive or negative action, fact, or happening is called assertive sentence. एक सिंपल सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्शन को, फैक्ट या फिर किसी हैपनिंग को, उसे कहा जाता है एक assertive sentence. It is of two types. ये एक्चुअली दो तरीकों का होता है. The first is affirmative or positive sentence. So, an affirmative sentence or positive sentence is a sentence that tell us that something exists or something is happening. ये affirmative sentence जो है वो एक positive sentence को denote करता है, right? जो कि हमें बताता है कि कोई चीज़ actually exist करती है और क्या काम वहाँ पर हो रहा है, right? Example, we should respect our team. After that, the next thing that we have is the negative sentence. So now what is a negative sentence? A negative sentence is a sentence that tells us that something does not exist or something is not happening. तो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो ऐसे सेंटेंस हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है या फिर वो हो ही नहीं रही है, राइट. बेसिकली जिन सेंटेंसेस में हम लोग नॉट, नो या नेवर या फिर ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें, वो आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी. एग्जाम्पल्स, we should not disrespect our teacher. Next, he does not like ice cream. Next, they are not going to the park today. Right? So, let's note that in negative sentences, words like not, never, no, none, nothing, etc. are used to express negation. Obviously, मैंने आपको भी बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं जैसे नॉट, नेवर, नो, नन, नथिंग, ये सभी यूज किए जाते हैं नेगेशन को एक्सप्रेस करने. राइट. मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव change your positive sentences into negative sentences. अब
हम कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी। वी यूज नॉट टू चेंज एन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट? तो हम लोग नॉट वर्ड का यूज करते हैं ताकि हम लोग एक्सप्रेस कर सके। तो वी यूज नॉट वर्ड ताकि हम लोग एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव चेंज कर सकें। तो दे आर, आई रोट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय। ही teases me, he does not teases me. I had a cow in my village, I had no cow in my village. राइट? तो हमने सिर्फ और सिर्फ नो और नॉट जैसे वर्ड्स का यूज करके इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, राइट? नेक्स्ट वी हैव द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन or inquires about something is called an interrogative sentence. ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछता है, राइट, इंक्वायर करता है उन चीजों के बारे में जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है, दैट इज नोन एज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो नेक्स्ट वी हैव अगेन द चेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी। So we use a helping verb to change the position of the verb and subject should be exchanged to make a question. के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं पोजीशन को चेंज करने के लिए वर्ब की, और सब्जेक्ट जो है वो एक्सचेंज किया जाता है ताकि हम इसे क्वेश्चन बना सके। एग्जाम्पल्स, यू गो टू दिल्ली, यू गो टू दिल्ली। वी रोट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर। ही प्लेज फुटबॉल, does he play football, right? After that, the next thing that we have here is the imperative sentences. तो अब ये imperative sentences क्या है? An imperative sentence is a sentence that expresses an advice, request, order, command, prohibition, warning, suggestion or proposal, राइट? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है ये सभी चीजें जैसे कि एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिशन, वार्निंग, सजेशन या फिर प्रपोजल, उन्हें कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। द सब्जेक्ट इज मिसअंडरस्टूड, सॉरी द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड टू बी यू इन मोस्ट ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम एक्चुअली सब्जेक्ट जो भी यू है उसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस ये अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट वी हैव चेंज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस? इन ऑर्डर टू चेंज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, डोंट बिफोर द मीन। कि अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है तो हम उसके पहले सिर्फ डोंट वर्ड का यूज कर देते हैं, जैसे कि गिव मी योर पेन, डोंट गिव मी योर पेन। प्लीज कम हेयर, प्लीज डोंट कम हेयर, राइट? मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस strong or sudden feelings or emotions such as joy, wonder, anger, sorrow, contempt, etc. Right? Okay, exclamatory sentence जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एक स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, इमोशंस जैसे कि जॉय, वंडर, एंगर, सॉरो या फिर कंटेम्प्ट एटसेट्रा। नाउ वी हैव चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो
what and how are used with a noun, not with an adjective or an adverb. Right? कि what और how किए जाते हैं noun के साथ, ना ही adjective और ना ही किसी adverb. Examples: what a pen you have, how beautiful the rain is. Right? The next topic that we have is parts of a sentence. So now, what are the parts of a sentence? There are two parts of a sentence: subject and predicate. Right? So, first of all, we have subject, part of a sentence, that is the doer of the verb. का पार्ट सेंटेंस का जो कि वर्ब का डूअर होता है, यानी कि जो काम कर रहा होता है, उसे कहा जाता है सब्जेक्ट. जैसे कि एग्जांपल है, राम इज अ गुड बॉय. तो यहाँ पर राम जो है वो काम कर रहा है, दैट मीन्स राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट. नेक्स्ट, indicate the part of a sentence that expresses what is said about the subject. पार्ट सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताए कि एक्चुअली सब्जेक्ट के बारे में क्या चीज कही जा रही है. सो दैट इज नोन एज द प्रेडिकेट. एग्जांपल, राम इज अ गुड बॉय. सो राम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है इज अ गुड बॉय, तो वो हमारा प्रेडिकेट है. So that was all about the chapter sentences. I hope you all are clear with it as well as its kinds. So that was all from my side. Hope you all enjoyed it and gathered some information. Thank you so much and have a great day ahead.